Hello everyone, online class 8th, subject SST, lesson 19, part 3. Beginning of World War II, द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ. The Second World War broke out on September 1, 1939 when Germany invaded Poland. On September 3, Britain to join war in favor of Poland. The government of India immediately joined the war without consulting the National Congress. The annoyed congressmen in protest tendered registrations in the seven provisions. 1 सितंबर 1939 को जर्मनी के पोलैंड पर आक्रमण के साथ द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया. 3 सितंबर 1939 को ब्रिटेन भी इस युद्ध में सम्मिलित हो गया. इसके साथ भारत को भी युद्ध में सम्मिलित कर लिया गया. ब्रिटेन द्वारा बिना किसी कारण के बिना भारतीयों की सहमत के लिए भारत को युद्ध में सम्मिलित करने से कांग्रेस अत्यधिक नाराज हुई. विरोध स्वरूप कांग्रेस शासित 7 प्रांतों के मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया. अगस्त प्रपोजल 1940, अगस्त प्रस्ताव 1940 में. इन एक्ट नवंबर 1939 द प्रोविजनल कैबिनेट्स tendered their registrations. Despite this, Congress lent its friendly hands towards British government and put the demand of a national government in the center before the British, but the latter ignored the demands. Lord Linlithgow on August 8, 1940 brought the August proposals in place of the Indian demands. It was repeated in the drafts of the proposals that India will be granted colonial Swaraj after the war. अक्टूबर-नवंबर 1939 में प्रांतीय मंत्रिमंडल को पत्र त्याग दे दिया गया. इसके बाद भी कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया और केंद्र में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की मांग की अंग्रेजों के समक्ष रखी, परंतु अंग्रेजों ने इस मांग की अवहेलना की. भारतीयों की मांग की जगह लॉर्ड लिथगो ने 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव रखा जो अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है. इस प्रस्ताव में फिर से दोहराया गया कि युद्ध के पश्चात भारत में औपनिवेशिक स्वराज की स्थापना की जाएगी. पाकिस्तान प्रपोजल्स लाहौर कॉन्फ्रेंस 1940, पाकिस्तान प्रस्ताव लाहौर अधिवेशन 1940. On 23 March 1940, the annual sessions of Muslim League held in Lahore, and here the proposals for Pakistan was passed. It was said in the proposals that geographically adjacent provinces should be recognized in a manner so as to create Muslim majority. 23 अगस्त 1940 को मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ, जिसमें पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया गया. इस प्रस्ताव में कहा गया कि भौगोलिक स्थिति में एक दूसरे से लगे हुए प्रदेश आवश्यक परिवर्तनों के साथ इस प्रकार गठित किए जाएं ताकि मुस्लिम समुदाय बहुसंख्यक हो जाए. क्रिप्स मिशन. The British government desperately needed Indian support during the Second World War. The southern frontier of India was being threatened by the impending Japanese forces. On the other hand, Indian National Armies in Rangoon was waiting to attack India throughout Burma. Under these circumstances, Stafford Cripps was sent to India to assure Indians about the future courses and establishing self-rule in India. According to Cripps' proposal, domination status was to be granted to India. Even a constituent assembly was proposed
but almost every party opposed these proposals on various grounds. क्रिप्स मिशन। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेज भारत के सक्रिय एवं पूर्ण सहयोग के लिए बेचैन थे। भारत के दक्षिण पूर्वी सीमाओं पर जापानी खतरा बढ़ रहा था। दूसरी ओर रंगून में स्थित इंडियन नेशनल आर्मी बर्मा के रास्ते भारत पर आक्रमण करने की तैयारी कर रही थी। इस परिस्थिति में इंग्लैंड के युद्धकालीन मंत्रिमंडल के सदस्य सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारतीयों के लिए वर्तमान में स्वशासन और भविष्य के लिए कुछ ठोस आश्वासन के साथ भारत भेजा गया। क्रिप्स प्रस्ताव द्वारा भारत के युद्धोपरांत अधिराज्य का दर्जा दिया जाना था। एक संविधान सभा को प्रस्तावित थी, परंतु लगभग सभी दलों ने अलग अलग कारणों से इस घोषणा को अस्वीकार कर दिया। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। इन अप्रैल 1942 the Cripps mission failed. A state of frustration prevailed in India again. On 8 August 1942, the All India Congress Committee at a meeting in Bombay passed a resolution. The resolution declared that the immediate India of the British rule in India was an urgent necessity for the sake of India and for the success of the cause of freedom and democracy, for which the countries of the Allied nations were fighting against the fascist Germany, Italy, and Japan. Gandhiji gave the famous slogan of "Door or door, do or do," which echoed in every part of India. In the early hours of the morning of 9 August 1942, most of the leaders of Congress were arrested. They were lodged in jails in different parts of the country. The movement became very aggressive. There were firing, lathi charges, and mass arrested all over the country. Over thousands were injured in British oppression. People in anger took to violent activity. The people attacked and damaged the government property, damaged railway lines, and disrupted the post and telegraphs at several places. अप्रैल 1942 में क्रिप्स मिशन की असफलता और उसके परिणाम फलस्वरूप निराशा ने एक बार फिर से देश में कुंठा की स्थिति पैदा कर दी। 8 अगस्त 1942 में मुंबई में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने एक प्रस्ताव पास किया। प्रस्ताव में घोषणा की गई कि भारत में ब्रिटिश सरकार को जल्दी समाप्त करना अति आवश्यक हो गया है। आज़ादी और जनतंत्र की विजय के लिए फासिस्ट देशों तथा जापान के विरुद्ध लड़ रहे मित्रों राष्ट्रों के लिए भी ये जरूरी है कि भारत को जल्दी से स्वाधीनता मिल जाए। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया, जो हर जगह सुनाई पड़ने लगा। 9 अगस्त 1942 को सुबह कांग्रेस के अधिकांश नेता गिरफ्तार कर लिए गए। उन्हें देश की विभिन्न जेलों में बंद कर दिया गया। परिणाम स्वरूप आंदोलन ने उग्र रूप धारण कर लिया। गोलियां चली, लाठीचार्ज हुए और सारे देश में गिरफ्तारियां हुई। इनमें हजारों लोग घायल हुए। अत्यंत आक्रोशित जनता भी हिंसा पर उतर आई। लोगों ने सरकारी संपत्ति पर हमला किया, रेल की पटरियां को तोड़ डाला गया और पुल, टेलीफोन तथा तार लाइनों को क्षति पहुंचाई। Few places like Balia and Satara were freed from the British rule, but the government operations now no bombs were hurled through the aircrafts. They opened fire, which resulted in death of thousands of
protesters. All the prominent leaders were in prisons. Those who were not arrested went underground. The Quit India movement could not last long due to government oppressions. बलिया और सतारा जैसे कुछ स्थान अंग्रेजी दास्ता से मुक्त हो गए, मगर सरकारी दमन चक्र की उग्रता अपनी सभी सीमाएं तोड़ गई। हवाई जहाज़ों में बम बरसाए गए, गोलियां चलाई गई, बड़ी संख्या में लोग मारे गए। सभी बड़े नेता बंदीगृह में थे, जो बाहर थे वह भूमिगत हो गए। सरकारी दमन चक्र के कारण भारत छोड़ो आंदोलन अधिक समय तक नहीं चल सका। इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशंस, भारत विभाजन एवं स्वतंत्रता। The British government announced in 1946 that they were willing to end their rules in India. A cabinet mission was sent to India to hold negotiation with the Indian leaders on the question of transfer of power. It proposed the formation of an interim government and the convening of an assembly. An interim government headed by Jawaharlal Nehru was formed. The Muslim League initially refused to join the government but later became a part. The assembly started to work in 1946 but Muslim League refused to join it. ब्रिटिश सरकार ने 1946 में घोषणा की कि वह भारत में अपना शासन समाप्त करना चाहती है। ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक दल, जो कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता था, वह सत्ता के हस्तांतरण के बारे में भारतीय नेताओं से बातचीत करने के लिए भारत आया। सरकार ने अंतरिम सरकार बनाने और संविधान सभा बुलाने का प्रस्ताव रखा। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार बनी। On 20 February 1947, the government announced important policy and Lord Mountbatten was made new Viceroy of India, who worked out a compromise. After long decisions with the leaders of Muslim League and Congress, the country was to be partitioned and a new state of Pakistan was to be created. It was decided to Mountbatten plan that ruling power will be transferred to India and Pakistan on 15 August 1947. अब 20 फरवरी 1947 को सरकार ने नीति संबंधी महत्वपूर्ण घोषणा की और इस सरकार में आरंभ में मुस्लिम लीग सम्मिलित नहीं हुई थी। कुछ समय बाद वह सरकार में सम्मिलित हुई। संविधान सभा ने दिसंबर 1946 में अपना काम शुरू किया, परंतु मुस्लिम लीग ने उसमें भाग लेने से इनकार कर दिया। फिर 20 फरवरी 1947 को सरकार ने नीति संबंधी महत्वपूर्ण घोषणा की और लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का नया वायसराय बनाया। उन्होंने आगे चलकर अपनी एक योजना प्रस्तुत की, जिसके तहत भारत और पाकिस्तान में विभाजन का स्वीकृति मिल गई। माउंटबेटन योजना में निर्णय लिया गया कि 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान को सत्ता का हस्तांतरण कर दिया जाएगा। On 18 July 1947, Indian Freedom Ordinance was accepted and India and Pakistan were separated, and finally on 15 August 1947, India was made free from the British rule. Pandit Jawaharlal Nehru was made the first Prime Minister of Free India. 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम स्वीकृत हुआ और देश भारत और पाकिस्तान दो राष्ट्र में विभक्त हुआ। अतः 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया और स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बनाए गए। थैंक यू।